Hello YouTube. So this is the fifth part of Indian society where we'll deal with the marriages in Indian society. ठीक है, तो आज का टॉपिक हो गया मैरिज. ठीक है, स्पेशली इन इंडियन सोसाइटी विल आल्सो लुक एट द कंपैरिजंस लाइक फ्रॉम अदर कंट्रीज. तो यहाँ पे हम मेनली क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं मैरिज में. लेट मी जस्ट क्विकली गिव यू एन ओवरव्यू. तो सबसे पहले हम फंक्शंस तो देखेंगे मैरिज का. फिर हम देखेंगे कि मैरिज को हम देखते कैसे हैं. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज में मैरिज को हम किस तरह से बाइफरकेट कर सकते हैं. तो एक तो है सैक्रेमेंट व्यूज. सैक्रेमेंट बेसिकली संस्कार जो हो गया, और एक हो गया कॉन्ट्रैक्ट व्यूज. ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स ऑफ मैरिज हो गया. देन विल सी some changing patterns according to the contemporary times. ठीक है, so this is our third subtopic, changing patterns. Then we'll also see that how intercaste marriage or interreligious marriage is taking place in our country. ठीक है, सो दिस इज दिस. एंड इसमें कुछ कुछ और भी हम टर्म्स देखेंगे कि व्हाट इज बेसिकली एंडोगेमी, एक्सोगेमी एंड योर न्यू फॉर्म्स दैट इज लिव इन रिलेशनशिप, सेम सेक्स मैरिज, उसका क्या लीगल एस्पेक्ट क्या है, सोशल एस्पेक्ट क्या है. सिंस दिस इज अ सोशल सोसाइटी पेपर, विल आल्सो लुक एट things not just from legal perspective but also from the social perspective. ठीक है, and first and foremost disclaimer that these are not my own personal views about marriage. This is only about academics. This is only from UPSC answer writing point of view. Whatever I speak here doesn't depict what I and how I look at marriage. ठीक है, so this is the disclaimer. So let's quickly move ahead with the topic, that is marriage. So marriage basically in sociological terms we call it a social institution. Okay, like we studied in the last video, that is family. Family is also a social institution, so marriage is also a social institution. Okay, it is universal social institution, you can say, because it is happening all over world. Okay, it's just that in different society its forms, ठीक है, एंड मीनिंग डिफर. ठीक है, मतलब मैरिज आपको हर जगह दिखेगा, बट हाउ व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ मैरिज एंड हाउ डज व्हाट डज इट मीन, ये सब चेंज हो जाएगा. ठीक है, नाउ अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें मैरिज को, सो इन इंडिया मैरिज इज मोर देन जस्ट अ यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स. ठीक है, अब इसके बारे में कुछ अलग से पढ़ना थोड़ी पड़ेगा, हम हमें दिखता ही है ये सब चीज अपने सोसाइटी में. ठीक है, सो इट्स इन इंडिया, इट्स बेसिकली इन एटलीस्ट इन मेजोरिटी ऑफ इंडिया. ठीक है, क्योंकि अभी बहुत हद तक चेंज हो चुका है, जहाँ पे जो ये फैक्टर्स है वो सब इतना मैटर नहीं करता है. तो वी शुड कीप इन माइंड दैट व्हाइल वी राइट द आंसर्स वी डोंट गिव अ जनरलाइजेशन of all these things. We should use the terms in majority, in most, so it will look mature. ठीक है, अगर हम ऐसे बोल देंगे कि इंडिया में तो सारे मैरिजेस ऐसे ही होते हैं, so this this is not very wrong, but this shows that you are very premature in the understanding of it. ठीक है, so we should be responsible that we use the terms correctly and appropriately. ठीक है, so in India marriage is more than just two individuals, and what it is, then it is between families. ठीक है, it is an alliance between families. ठीक है, it is also used for creating kinship ties. ठीक है, kinship हमने लास्ट वीडियो में देखा था. ठीक है, now it is also a way to ensure basically your legitimate children. ठीक है, legitimacy of the children is primary factor इन दिस थिंग. ऑल्सो हमने लास्ट टाइम देखा था कि जैसे कि फैमिली था या फिर कोई भी ग्रुप होता है, वो सोशली रिकॉग्नाइज तभी होता है जब दो कपल बेसिकली आपका मैरिज टाइज से कनेक्टेड हो. ठीक है, अदरवाइज बाकी चीजों को एक टैबू या सोशल स्टिग्मा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, राइट. ओके, फोर्थ वन इज योर बेसिकली धर्मा एंगल. ठीक है, basically marriage is also a way or necessary to fulfillment of dharma. ठीक है, so these are some point of view, or these are some things that are associated with marriage in India. ठीक है, इसके बाद अगर हम कुछ functions देखें मैरिज का कि what are the some functions of marriage. ठीक है, again disclaimer, I'll repeat the same thing, these are not my personal views. ठीक है, so पहला function is basically your regulation of
regulation of sexual behavior. ठीक है, so this is your first function of marriage. Now what is this? It is basically that the marriage provides a socially approved and your culturally recognized framework for sexual relations and reproduction. So basically, in India, marriages is seen as the primary need for the reproduction and socially recognized way of reproduction. ठीक है, okay. Second, a function that is there, that is basically we already talked, legitimacy of the children. ठीक है, now I'll not repeat that. Third function is that फॉर्मेशन ऑफ किनशिप नेटवर्क, अगेन किनशिप लिख देते हैं यहाँ पे. ठीक है, बेसिकली जो हमारे इंडिया का फॉर्म्स था वही फंक्शन भी होंगी. फोर्थ इज योर बेसिकली दैट इज योर इमोशनल सपोर्ट. ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट इन कंटेम्पररी टाइम्स वेयर मैरिज हैज टेकन द फॉर्म ऑफ लव and emotional connection and not just a alliance between two families. ठीक है, also another function that you we can write, that is your economic cooperation. Now you might be thinking that how marriage is an economic cooperation. So in India particularly, marriage basically creates an economic partnership, that is pooling resources, dividing labor and providing mutual material support. Basically if you see in most of the India where the male person, ठीक है, is earning member, ठीक है, and the female one is homemaker. राइट, नाउ व्हाट इज दिस इज बेसिकली अ कॉमन पूल ऑफ रिसोर्सेस कि मेल एक कॉमन पूल में इकोनॉमिक रिसोर्सेस ला रहे हैं, एंड सिंस फीमेल्स has been deprived, females have been deprived of education, so they are not able to earn much, and since they need a financial assistance, and male are primarily raised as to earn something and they are not very good in homemaking. So this is the majority case. Again, this is not a norm or this is not the right or wrong, whatever. This is the majority case in India where this is the structure of the family. So now this is where the division of labor comes कि male तो बाहर जाके earn करेंगे and female घर पे काम करेंगे. So this is also a reason of marriages in India. ठीक है, so these are very controversial to talk about because people tend to take it in a wrong way that I am supporting or opposing whatever. So please keep in mind that all these are academic exercise. Okay. Next, the topic we have to read is basically your marriage. जो marriage का जो form है वो sacrament एक POV है, and sacrament versus contract is basically the subtopic. So what is sacrament versus contract? So basically there are two POV in this. ठीक है, क्या POV है, let me explain you. Okay, before my OCD kicks in, let me just straight. ठीक है, so एक तो हो गया हमारा हिंदुइज्म के व्यू. ठीक है, हिंदुइज्म हो गया, और एक हमारा हो गया इस्लामिक व्यू. ठीक है, इस्लामिक व्यू में क्या होता है, इस्लामिक व्यू में ये कॉन्ट्रैक्ट वाला फैक्टर आता है. मैरिज इज अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज योर निकाह. उनके यहाँ पे निकाह बोलते हैं, राइट, एंड लेट मी राइट इट प्रॉपरली, निकाह बोलता है. ठीक है, एंड हिंदुइज्म में क्या बोलते हैं, इट इज बेसिकली सैक्रेमेंट. ठीक है, संस्कार. नाउ इन बोथ द व्यूज इंडिविजुअलिज्म इज नॉट प्रायोरिटाइज्ड. ठीक है, मतलब इंडिविजुअल लव और इमोशनल कनेक्शन इज नॉट प्रायोरिटाइज. हिंदू के लिए संस्कार इज इम्पॉर्टेंट एंड इस्लाम में कंट्रैक्ट एंड निकाह इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो अब हिंदुइज्म में हम देख सकते हैं कि देर इज बेसिकली धर्मा का कंसेप्ट, दैट इज योर ड्यूटी, दैट इज प्रजा का कंसेप्ट, दैट इज योर चिल्ड्रन, दैट इज रति का कंसेप्ट, दैट इज योर प्लेजर. So all these are Hinduism point of view, and in basically your uh, in Islam basically one concept is there, your sunnah, that is your Islamic recommended duty. ठीक है, these are some keywords we can use. ठीक है, also in Hinduism marriage is not a choice, and even in Islam we can say that it is not a choice anymore in a lot of parts of India. कि जैसे फॉर एग्जांपल स्पेशली इन केस ऑफ वुमेन ये ज़्यादा देखने को मिलता है. फॉर एग्जांपल कि अगर फॉर एग्जांपल अ वुमन इज देयर एंड शी डजंट वांट टू गेट मैरिड, दैट इज नॉट अ चॉइस फॉर हर. ठीक है, मतलब उनको बचपन से ऐसे रेज किया जाता है कि उनको फैमिली का रिस्पेक्ट इज देयर फोरमोस्ट ड्यूटी rather than उनका अपना चॉइस. ठीक है, सो यू मस्ट हैव नोटिस दैट अ लॉट ऑफ वुमेन डोंट ऑल्सो गेट इनटू रिलेशनशिप्स बेसिकली बिकॉज दे नो कि एट द एंड ऑफ द डे उनके फैमिली इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगी, तो वाई टू गेट इनटू इमोशनल ट्रबल.
ठीक है. ऑल्सो फॉर द अदर पर्सन इट बिकम्स इमोशनल टर्मोइल. ठीक है. ऑल्सो द कास्ट एंडोगेमी फैक्टर कम्स इन कि अगर मान लो उसका फैमिली लव मैरिज को सपोर्ट कर भी देती है तो इट द प्राइमरी कंडीशन प्री कंडीशन इज बेसिकली द कास्ट एंडोगेमी कि अपने ही कास्ट में होना चाहिए. सो ऑल दीज फैक्टर्स कम इन टू प्ले स्पेशली फॉर वुमेन इन आवर सोसाइटी. ठीक है. नाउ इसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ मैरिजेस में जाए एक बार. ठीक है. टाइप्स ऑफ मैरिजेस में जाए, टाइप्स में हमारे पास कुछ कुछ कैटेगरीज आएंगी. ठीक है. तो सबसे पहला कैटेगरी दैट इज योर नंबर ऑफ पार्टनर्स इज द कैटेगरी. ठीक है. नंबर ऑफ पार्टनर्स. ना नंबर ऑफ पार्टनर्स में हम क्या क्या देखते हैं. एक तो हम देखते हैं योर मोनोगैमी. ठीक है. ना मोनोगैमी क्या है. मोनोगैमी इज वेरी सिंपल. वन मैन एंड वन वोमन. दैट इज योर बेसिकली यू कैन सी इन मोस्ट पार्ट. ठीक है. सो इट इज लीगली मैंडेटेड फॉर हिंदू, सिख्स, जैन्स, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियंस, पारसीज. ठीक है. मोस्ट ऑफ द रिलीजियंस, फॉर मोस्ट ऑफ द रिलीजियंस इट इज लीगली मैंडेटेड. But then again there is another concept that is your polygyny. ठीक है. Polygyny is basically इसमें भी हाँ. So this is the correct spelling. Now polygyny is basically एक तो यार OCD जो है ना वो चैन से रहने देता है. नाउ पॉलीजीनी. ठीक है. पॉलीजीनी में क्या होता है कि वन वुमन विल बी देयर एंड देयर विल बी योर मल्टीपल वाइफ्स. ठीक है. नाउ दिस इज समथिंग वेरी कंट्रोवर्शियल बट अगेन फॉर आवर एकेडमिक एक्सरसाइज दैट इट इज लीगली अलाउड इन योर मुस्लिम पर्सनल लॉ. ठीक है. अप टू 4. ठीक है. विद इक्वल ट्रीटमेंट. अनदर वन इज देयर पॉलीएंड्री. ठीक है. सो पॉलीएंड्री इज बेसिकली वन वुमन एंड मल्टीपल मेन इज देयर. ठीक है. वन वन वुमन, सॉरी यहाँ पे वन मैन होगा राइट. वन वुमन, वुमन एंड मल्टीपल men. ठीक है. दिस इज बेसिकली मोस्टली सीन इन अमंग ट्राइब्स. ठीक है. लाइक टोदास, खासा. ठीक है. एंड सम लद्दाखी कम्युनिटीज. ठीक है. उनमें भी ये सब दिखता है. सो दिस इज वन कैटेगरी. नाउ अनदर कैटेगरी दैट इज योर स्पाउस सिलेक्शन. ठीक है. स्पाउस सिलेक्शन. नाउ स्पाउस सिलेक्शन में द मोस्ट पॉपुलर इज योर कास्ट एंडोगैमी. कि कास्ट तो सेम होना चाहिए बट गोत्र एक्सोगैमी होना चाहिए. बेसिकली सेम कास्ट में गोत्र अलग होना चाहिए. ठीक है. Okay, another form is there that is your levirate. Levirate is basically when a man marries the widow of his deceased brother. So basically अगर A है and P है, ये दोनों अगर भाई है. ठीक है. and let's say कि A का कोई वाइफ है C. ठीक है. एंड इनका डेथ हो जाता है तो B हैज टू मैरी, सॉरी नहीं 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 नहीं, A है B है दोनों भाई है. ठीक है. एंड ये B जो है ये बेसिकली ये बेसिकली आपका वाइफ है एंड ए का डेथ हो जाता है तो बी विल मैरी हिम. ठीक है. सो दिस इज योर लेविरेट. ओके. नेक्स्ट इज योर contemporary forms. ठीक है. नाउ contemporary forms are very important because UPSC might be asking these contemporary forms only क्योंकि उसमें polygamy, polyandry ये सब बहुत कॉमन हो चुका है. लिव इन रिलेशनशिप एंड योर सेम सेक्स मैरिज में क्वेश्चन बन सकता है. But keep in mind that there is a legal judgment in same sex marriage, that is same sex relationships are allowed, that is not criminalized anymore. ठीक है. बट सेम सेक्स मैरिज जो है, ठीक है, सेम सेक्स मैरिज जो है दिस इज लीगली नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन सुप्रीम वर्सेस सुप्रीम कोर्ट 2023 जजमेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है. ऑल्सो लिव इन relationships are somehow to some extent legally recognized because under article 21 you are allowed to have your own form of relationship and partner choice, and it is also growing in mostly urban part. and also अगर UCC जैसे कि उत्तराखंड UCC में आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा लिव इन रिलेशनशिप, that very registration concludes that this is to some extent accepted. ठीक है. ओके. अब जो अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा दैट इज योर factors responsible for change in Indian marriage. Now what are the factors that are changing the forms and types of Indian marriages? ठीक है. नाउ सबसे पहला तो फैक्टर आएगा वुमेन एडुकेशन. नाउ यू मस्ट बी नोटिसिंग दैट अ लॉट ऑफ मैरिज थिंग इज basically in tie with the woman factor. That is because
in historically in Indian society especially और in world, ठीक है, हर जगह पे ही वोमेन को ही एक सप्रेसिव के तरह रखा गया था एंड उनको उनको बेसिकली मैरिज वाज जस्ट अ मेथड टू फॉर them to suppress women, ठीक है, कि after a point woman will get married and she will go to the husband's family and वहां पे उनको 100 तरह की प्रॉब्लम सफर करना पड़ेगा, ठीक है। so, अब दिक्कत दिक्कत तो नहीं हुआ है, दैट इज फॉर गुड ऑब्वियसली, बट द थिंग इज कि अब वोमेन एडुकेशन आने के बाद से पूरा मैरिज का जो स्ट्रक्चर है वही हिल गया है, बिकॉज इंडियन मैरिजेस हैज बीन हिस्टोरिकली ऑल अबाउट सप्रेसिंग वुमेन, जो कि अब वो लोग कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो अब इट्स बाउंड टू चेंज द फॉर्म एंड बाउंड टू चेंज द इंडियन मैरिज फॉर्म्स, ठीक है। तो अब वुमेन एडुकेशन की वजह से डिले हो रहा है मैरिज में, ठीक है। सो दिस इज वन चेंजेस। Also there is basically educational hypogamy also, educational hypogamy is basically पहले क्या होता था, पहले educational hypergamy होता था, ठीक है। educational hypergamy में क्या होता था कि जो वुमेन होगा उनका जो एजुकेशन स्टेटस होगा वो मेन से कम होगा, बट अभी जो हाइपोगैमी हो गया है, हाइपोगैमी में क्या हो रहा है, वुमेन का एजुकेशन स्टेटस मेन से ज्यादा है, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन का बात हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। So this so women education has led to educational hypogamy also. Another is your urbanization. Now urbanization में क्या हो रहा है कि सिटी लाइफ जो है वो प्रिवेसी लाता है, ठीक है, वो फैमिली से डिस्टेंस क्रिएट करता है, वो न्यू आइडियाज से एक्सपोजर भी लाता है। सो दिस बेसिकली वीकेंस योर ट्रेडिशनल नॉर्म्स एंड एनकरेज न्यू फॉर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है। थर्ड इज योर बेसिकली ग्लोबलाइजेशन इज ऑल्सो देयर, कि ग्लोब में क्या हो रहा है बाकी जगह, सो दैट इज ऑल्सो अ फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल डिवोर्स हैज नॉट बिन हिस्टोरिकली वेरी कॉमन इन इंडिया, बट अभी डिवोर्स जब हम सोशल मीडिया में सुनते हैं, देखते हैं बाकी देशों में क्या हो रहा है, ठीक है, तो स्पेशली वुमेन ऑल्सो स्टैंड फॉर देयर राइट्स, दे रेज देयर वॉइसेस, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। फोर्थ इज योर लीगल रिफॉर्म्स भी हो गया है कि डिवोर्सेस का लीगल सैंक्शन मिल चुका है, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। फिफ्थ इज योर फिफ्थ इज योर बेसिकली डिजिटल टेक्नोलॉजी, ठीक है। डिजिटल टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है दैट जो मैट्रिमोनियल साइट्स है, ठीक है, वो बेसिकली अभी भी एंडोगैमी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो डेटिंग ऐप समटाइम्स हेल्प पीपल क्रॉस सोशल बाउंड्रीज, बट even though dating apps sometimes help people cross social boundary, matrimonial जो sites है वो generally बेसिकली इस पूरा पॉइंट का हमारा ये पॉइंट है कि जनरली टेक्नोलॉजी से हम देखते हैं कि हम मॉडर्नाइज होते हैं, हम अपने पुराने जो हिस्टोरिकली जो सप्रेसिंग व्यूज है उनसे हम बाहर आते हैं with the help of your technology, but in marriage in the case of marriage digital technology is basically promoting that, क्योंकि आप कोई भी मैट्रिमोनियल साइट में जाओगे वहां पे आपको कास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सब कास्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तो वो बेसिकली जो हिस्टोरिकल सोशल फैक्टर्स है उसको बेसिकली प्रमोट ही कर रहा है, उसको कम नहीं कर रहा है, ठीक है। Okay, some things that are being seen in India, that is rising age ऑफ मैरिज। तो ये एक बात चल रहा था कि जैसे कि मेन का लीगल मैरिज एज इज बेसिकली योर 21 एंड वोमेन का अभी भी 18 है, तो ये बात चल रहा था कि वोमेन का भी 18 से 21 कर दिया जाए, ठीक है। एक बिल लाया गया था कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 में ये बोला जा रहा था कि इसको भी बढ़ा के 21 कर दिया जाए, ठीक है। प्रपोजल था, अभी तक हुआ नहीं है ये चीज। सो इसके पीछे कुछ आर्ग्यूमेंट्स, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है या फिर कोई दूसरे क्वेश्चन में इसके बारे में हमें लिखना पड़ जाए, तो इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स है फेवर में, दैट इज जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी होना चाहिए कि मेन और वुमेन का एज अलग क्यों होगा, दोनों का ही 21 हो या तो दोनों का ही 18 हो, ठीक है। ओके, सेकेंड इज योर बेटर हेल्थ आउटकम्स, जैसे कि एनीमिया जो होता है वुमेन में मोस्टली कॉमन, वो रिड्यूस होगा, तो एक हेल्थ वाला एंगल आ जाएगा इसमें, ठीक है। थर्ड इज योर बेसिकली एडुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटीज भी इम्प्रूव होगा अगर थोड़ा लेट से शादी होगा, ठीक है। फोर्थ इज योर रिड्यूस्ड बर्थ रेट्स भी कम होगा इससे, ठीक है। बट इसके जो अगेंस्ट में है, ठीक है, अगेंस्ट में जो आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, दोज आर बेसिकली दैट लीगल एज चेंज विदाउट एड्रेसिंग द अंडरलाइंग पॉवर्टी एंड सोशल नॉर्म्स, दीज विल नियरली ड्राइव चाइल्ड मैरिज अंडरग्राउंड,
ठीक है, इससे मतलब एक्चुअली में कुछ होगा नहीं, ये बस ऊपर ऊपर से इलीगली होगा ही होगा, ठीक है, मतलब 18 से अगर 21 कर दिया जाए तो 18 में स्टिल शादी होगा ही, इट्स जस्ट दैट कि वो लीगली रिकॉग्नाइज नहीं होगा, तो उससे और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अभी एटलीस्ट कुछ लीगल सेफ गार्ड्स तो मिलती है वुमेन को, ठीक है, सो दिस इज द थिंग। ओके, अनदर थिंग दैट इज देयर कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो तो स्लोली ग्रोथ हो रहा है हमारे देश में, ठीक है, जो इंटरकास्ट है ये स्लो ग्रोथ हो रहा है, बट जो इंटर रिलीजियस है, ठीक है, इंटर रिलीजियस जो है ये बहुत ही स्लो हो रहा है, ठीक है, बहुत ही स्लो हो रहा है। इसको स्लो को कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ बेसिकली, ठीक है, बहुत ही स्लो ग्रो हो रहा है, बट इंटरकास्ट मैरिज भी स्लो ग्रोथ हो रहा है, बट इंटर रिलीजियस मैरिज को हम ऐसे लिख सकते हैं, वेरी स्लो नहीं लिख के ये लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंटली रेयर लिख सकते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंटली रेयर, ऑलमोस्ट एब्सेंट, ये सब चीजें लिख सकते हैं। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर हम देखें कि इंटरकास्ट मैरिजेस क्यों ग्रो कर रहा है, तो उसके कुछ फेवर में जो आर्ग्यूमेंट्स है, वो फेवर वाले आर्ग्यूमेंट्स ये हो गए कि एडुकेशन एक तो बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है, ठीक है, कि एडुकेशन से आप बाहर जाते हो अपने नेटिव प्लेसेस से, फिर आप रहते भी बाहर हो, तो उतना लोग इंटरफेयर नहीं करते हैं आपके मैरिज में कि आप किस कास्ट से शादी कर रहे हो, एज कम्पेयर टू कि जब जॉइंट फैमिली में रहते थे तब मैटर करता था, या फिर विलेज कम्युनिटीज में मैटर करता था। ऑल्सो अभी कास्ट को ओवर डोमिनेट कर दे रहा है क्लास आइडेंटिटी, कि अगर लड़का और लड़की दोनों 1 लाख रुपीज पर मंथ का जॉब करता है तो फिर कास्ट मैटर नहीं करता है, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड सेम हो जाने से भी काम चल जाता है, ठीक है। ऑल्सो जो न्यूक्लियर फैमिली वाला कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, ठीक है, कि न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि जो एल्डर्स है, ठीक है, जो एल्डर्स है उनका रोल बहुत ही कम हो जाता है, तो बेसिकली ये सब चीजों में एल्डर्स ही तो इंटरफेयर करते हैं कि हाँ कास्ट मेंटेन होना चाहिए, सब कास्ट मेंटेन होना चाहिए, तो जब एल्डर का रोल ही कम हो जाएगा, अगर ऐसा हो जाएगा कि भाई मतलब जो बच्चे हैं वो जाके माँ बाप को, बच्चे तो नहीं है एडल्ट्स है, वो जाके अपने माँ बाप को बताएंगे कि हमने अपना पार्टनर चूज कर लिया है, तो ऑलरेडी जब चूज कर ही लिया है तो उसमें और कास्ट का रोल तो आएगा नहीं। सो दिस इज द केस फॉर योर इंटरकास्ट मैरिजेस, ठीक है, बट इट्स स्टिल रेयर, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉमन हो गया इंटरकास्ट मैरिजेस, ठीक है, मतलब हम लोग मे बी हम अगर दिल्ली में रह के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि चलो ठीक है आसपास में बहुत ज़्यादा उतना कुछ मैटर नहीं करता है, या फिर हम सोशल मीडिया में जो मैरिजेस देखते हैं उनमें हम देखते हैं कि हाँ ये सब तो काफ़ी नॉर्मल है, ठीक है, लव को प्रायोरिटी मिलना चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है, सोशल मीडिया डजेंट डिपिक्ट द मोस्ट ऑफ द इंडिया, तो मोस्ट ऑफ द इंडिया में ये अभी भी काफ़ी प्रिवेलेंट है, सो इट इज स्टिल रेयर, बिकॉज इसके भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स होंगे कि द फैमिली नॉट जस्ट द इंडिविजुअल इज द यूनिट ऑफ मैरिज इन इंडिया, ठीक है, फैमिली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर ऑनर किलिंग भी हो जाता है। अभी हमने लास्ट तो कोई एक टॉपिक पढ़ते वक्त देखा था कि कितना ज्यादा ऑनर किलिंग हुआ है लास्ट 3 साल में, ठीक है, वो डेटा मैं भूल जाता हूँ, बट यू कैन मेक अ शॉर्ट डायरी काइंड ऑफ थिंग जहाँ पे हम सिर्फ डेटा और कोट लिख सकते हैं। आई एम ऑल्सो थिंकिंग ऑफ डूइंग दैट, बट आई स्टिल हैव टाइम टू डू ऑल दिस बिकॉज अभी 1 साल है मेंस में। ओके, सो दीज आर सम थिंग्स जो कि इंटरकास्ट का बात हो गया, ठीक है। अब अगर इंटर रिलीजियन का देखें, नाउ रिलीजियस आइडेंटिटी इज नॉट मियरली अ फेथ बट अ कम्प्रीहेंसिव कल्चरल आइडेंटिटी, क्योंकि जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस में आपका फेस्टिवल, फूड प्रैक्टिसेस, लाइफ साइकिल रिचुअल्स, ठीक है, जो आपके बर्थ रिचुअल है, मैरिज रिचुअल है, ये सब ऑलमोस्ट सेम ही होता है इंटरकास्ट में भी, ठीक है, बट इंटर रिलीजियस में ये सारा कंप्रीहेंसिव कल्चरल आइडेंटिटी में ही शिफ्ट हो जाता है, एंड for that inter religious marriage are much more rarer than your intercaste marriages। तो ये हो गया इसका फैक्टर, ठीक है। अब इसमें एक एंटी कन्वर्जन लॉज भी आ जाता है कि फोर्सफुल कन्वर्जन तो नहीं हो रहा है, कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है, एक लव जिहाद का भी कंसेप्ट आ गया है अभी, ठीक है। सो ऑल दीज मैटर्स आर देयर, जिसके वजह से इंटरकास्ट मैरिज अगर स्टिल हो रहा है थोड़ा बहुत भी, इंटर रिलीजियस मैरिज तो बहुत बहुत ही कम हो रहा है, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड लाइक दिस कि द स्लो इंक्रीज इन इंटरकास्ट मैरिजेस एंड द वेरी लो लेवल ऑफ इंटर रिलीजियस मैरिजेस शो एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब क्या डिफरेंस है
कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एजुकेशन आर हेल्पिंग पीपल क्रॉस कास्ट बाउंड्रीज, स्पेशली व्हेन दे आर बिलोंगिंग टू देयर सिमिलर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रुप, जो कि हमने पहले भी बात किया। आई एम जस्ट समराइजिंग दैट कि अगर क्लास कम से कम सेम हो जाए तो कास्ट फिर भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। However, religious boundaries remain much stronger and harder to cross. Caste is becoming more negotiable, but religion remains a stronger social boundary in India. So that is the thing. ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज योर जो डिजिटल मैट्रिमोनी में हमने देखा था उसका एक मेरे पास बहुत अच्छा कीवर्ड है, ठीक है, चुराया हुआ कीवर्ड ऑब्वियसली कोई कोचिंग से। सो दैट कीवर्ड इज योर एल्गोरिथमिक एंडोगेमी। तो पहले तो कास्ट एंडोगेमी होता था, अब एल्गोरिथमिक एंडोगेमी हो गया है। क्या है बेसिकली कि जैसे आप कोई डिजिटल मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म में जाते हो, फॉर एग्जांपल शादी.com, भारत मैट्रिमोनी या फिर जीवन साथी हो गया, दीज अलाउ यूजर्स टू फिल्टर मैचेस बेस्ड ऑन कास्ट, सबकास्ट, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज एंड सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। सो इट इज बेसिकली सिमिलर टू ट्रेडिशनल अरेंज मैरिजेस बट ऑन ए मच लार्जर स्केल। So this leads to your algorithmic endogamy where technology actually reinforces social boundaries instead of breaking them। तो हम जनरली बाकी चीजों में तो ये देखते थे कि जब टेक आ जाता था तो वो क्या करता था, वो आपके जो सोशल बाउंड्रीज जो होता था, सोशल बाउंड्रीज को ब्रेक करता था। बट यहाँ पे इन द केस ऑफ मैरिज टेक्नोलॉजी एक्चुअली रीइंफोर्सेस सोशल बाउंड्रीज इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग देम। नाउ algorithmic endogamy ensures people mostly see matches within their own caste or community. Now technology is scaling up social conservatism, millions of users are matched but still remain with fixed social limits. So this is the thing. Now another thing that is there in marriage, that is your rising divorce rates in India। ठीक है, डिवोर्स रेट जो है ये इंक्रीज हो रहा है इंडिया में। नाउ ये हिस्टोरिकली तो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। नाउ इंडिया हैज वन ऑफ द लोएस्ट डिवोर्स रेट्स इन द वर्ल्ड बट इट इज ग्रेजुअली चेंजिंग। ठीक है, नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज टू कंसिडर दैट राइजिंग डिवोर्स रेट्स आर नॉट सिंपली अ साइन ऑफ ब्रोकन फैमिलीज। हम ये देख लेते हैं कि डिवोर्स रेट अगर बढ़ रहा है दैट इज इक्वल टू ब्रोकन फैमिलीज, ये देखा जाता है यूजुअली, बट दिस इज नॉट द केस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जानना, बिकॉज दिस ऑल्सो रिफ्लेक्ट अ ग्रेटर इंडिविजुअल एजेंसी, कि इंडिविजुअल का जो इंपॉर्टेंस है, इंडिविजुअल का जो खुशी है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है फॉर एज कंपेयर टू सोसाइटी या फिर नॉर्म्स और वट एवर यू कॉल इट। ठीक है, सो दिस इज वन पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ दिस। ठीक है, especially for women। Now the challenge for society is to reduce stigma around divorce। अब सोसाइटी के लिए क्या चैलेंज है, डिवोर्स रेट तो बढ़ रहा है, अब अगर इसको हम स्टिग्मेटाइज कर देंगे या फिर इसको टैबू बना देंगे कि हाँ इसका जो डिवोर्स हो गया इसको एक अलग नजर से देखेंगे, जैसे हिंदू रिचुअल्स में बहुत सारे जो फेस्टिवल के रिचुअल्स होते हैं उसमें डिवोर्सीज को पार्टिसिपेट करने नहीं मिलता है। दिस इज अ वेरी वेरी what to say, this is a very heartbreaking thing to see। ठीक है, so the challenge for society now is to reduce stigma around divorce while strengthening support system for separated individuals and children। ठीक है, now अब इसके कुछ की causes देख लेते हैं कि हो क्यों रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला तो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि जो सोसाइटी का पेपर है और इसमें जो फैमिली, मैरिज, वुमेन, ये सब का जो भी क्वेश्चन आए, इसमें एक चीज तो मेजर आपको पॉइंट हाईलाइट करना है कि पहले वुमेन का एजुकेशन को सप्रेस किया जाता था जिस वजह से वुमेन को इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं मिलता था, एंड अब वो चीज रिवर्स हो चुकी है और फीमेल लिटरेसी बढ़ चुकी है, उनका वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ चुका है, विच हैज गिवन वुमेन द कॉन्फिडेंस टू एग्जिट अनहैप्पी और अब्यूजिव मैरिजेस। पहले तो जबरदस्ती एडजस्ट करना पड़ता था, इवन इन जॉइंट फैमिली में रहना पड़ता था, तो जॉइंट फैमिली में रहने से उनको वो एडजस्ट वाला फैक्टर आ जाता था, बट न्यूक्लियर फैमिली में एडजस्ट और स्टे करने वाला कोई फैक्टर ही नहीं है। ठीक है, ऑल्सो हमारे एस्पिरेशंस भी चेंज हो गए हैं। वी हैव स्टार्टेड गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू लव देन टू फैमिली अलायंस। ठीक है, कि अगर हमें प्यार होगा और हम एक इमोशनल कनेक्शन फील करेंगे किसी के लिए तो ही हम मैरिज में जाएंगे, अदरवाइज तो हम खुद भी कमा सकते, खुद भी खा सकते हैं। ठीक है, पहले ऐसा सिचुएशन था कि वुमेन को एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनके फैमिली से निकाल दिया जाता था, निकाल दिया जाता था इन द सेंस कि वो सोशल स्टिग्मा था कि एक टाइम के बाद, एक एज के बाद फैमिली में अनमैरिड डॉटर नहीं होना चाहिए, विच इज नॉट एनी मोर द केस। बहुत सारे ऐसे फैमिलीज है जहाँ पे अनमैरिड वुमेन ऑफ एज 30 इवन मोर देन दैट दे आर हैप्पीली लिविंग, उनके मम्मी पापा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सिंस दे आर मोस्टली लिविंग इन अर्बन एरियाज तो अर्बन एरियाज में इतना लोगों के चीजों में कोई इंटरफेयर भी नहीं करता है। सो दैट इज द थिंग।
ठीक है। सो अब इसके बाद एक लिव इन रिलेशनशिप को थोड़ा और डिटेल में भी देख सकते हैं। ठीक है, क्या पता इसमें कुछ आर्ग्यूमेंट फेवर और अगेंस्ट में आ जाए। तो एक तो फेवर में अगर आर्ग्यूमेंट लिखने आए तो हम सबसे पहले तो आर्टिकल 21 ही लिखेंगे, दैट इज राइट टू पर्सनल चॉइस। सो बेसिकली इन अंडर आर्टिकल 21 adults have the freedom to choose their partner and how they live। सेकेंड आ जाता है कंपैटिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, बेटर कंपैटिबिलिटी का सीन आ जाता है। एक चेंजिंग वैल्यूज का भी फैक्टर आ जाता है कि वैल्यूज तो चेंज हो रहा है हमारा। ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ चेंज इन साइंस, बेसिकली डेल्टा होता है ये। सो मॉडर्न रिलेशनशिप बेस्ड ऑन चॉइस एंड इमोशनल कनेक्शन, नॉट जस्ट सोशल प्रेशर। फोर्थ हो जाता है यार योर लीगल प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट गिव्स प्रोटेक्शन इन लॉन्ग टर्म्स लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है, सो लिव इन रिलेशनशिप में एज सच कोई दिक्कत नहीं है एक्सेप्ट योर सोशल स्टिग्मा। फिर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट जो आता है, those are basically your कि live in relationships seen as going against traditional values। वही मैंने बोला कि ट्रेडिशनल वैल्यूज वाला फैक्टर आ जाता है। ठीक है, नाउ सेकंड इज योर मेंटेनेंस प्रॉपर्टी और कस्टडी। ये सब जो चीजें हैं इसका कोई प्रॉपर वो नहीं है, प्रॉपर बाइफर्फिकेशन नहीं है कि कैसे क्या मैनेज होगा। ठीक है, उसके बाद चाइल्ड को एक सोशल स्टिग्मा फेस किया जाता है, इलेजिटिमेसी ऑफ चिल्ड्रन भी कभी कभी हो जाता है, रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन भी है, क्योंकि अगर बहुत सारा लिव इन, जैसे मैरिज तो आप लीगली जाकर रजिस्टर करते हुए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होता है, लिव इन रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं होता। तो लिव इन रिलेशनशिप में अगर एक वुमन को सफर करना पड़े कुछ ऐसा, तो वो चीज हाईलाइट नहीं होती है मोस्टली। ठीक है, इसमें एक जुडिशियल पोजीशन भी होगा। ये तो हो गया आपका इन जनरल सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू, इन फेवर एंड इन अगेंस्ट, एंड दीज आर नॉट माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बाय द वे। ठीक है, और जुडिशियल एक आ जाता है कि इंडियन कोर्ट्स हैव आल्सो रिकॉग्नाइज्ड लिव इन रिलेशनशिप एंड गिव देम अ डिग्री ऑफ लीगल वैलिडिटी। तो लीगली भी काइंड ऑफ ये टू सम एक्सटेंट इट इज एक्सेप्टेबल, मतलब क्रिमिनलाइज तो बिल्कुल नहीं है। आप आराम से शहर में अगर हो, मतलब गांव में तो आपको निकाल ही देगा गांव से, ठीक है, मार वार के, बट अगर आप शहर में रह रहे हो तो आप इजीली लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हो। ठीक है। Secondly, the judiciary held that long-term live-in relationships can, in certain cases, be treated as marriage-like relationship, especially for matters like maintenance। ये basically कोर्ट का जजमेंट का एक लाइन जो मैं आपको बताया अभी। ठीक है, so this is the thing. Courts have also clarified that children born from such relationship have inheritance rights। तो उनको अपना पापा का inheritance rights बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, also there is उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि मैंने पहले ही बात किया कि उत्तराखंड में यूसीसी लगा दिया गया, जिसमें से लिव इन रिलेशनशिप को रजिस्टर करने का बात बोला गया। नाउ हियर देयर इज अ प्रॉब्लम, दैट इज हियर कम्स द फैक्टर ऑफ लीगल प्रोटेक्शन वर्सेस राइट टू प्रिवेसी। नाउ अब द थिंग इज कि पहले तो मेरा प्रिवेसी होता था कि मैं किसके साथ लिव इन में रह रहा हूँ। अब अगर मुझे जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा तो दैट कम्स इन बिटवीन माई राइट टू प्रिवेसी, तो दैट इज अनदर कंसर्न। अब एक तो हो गया लिव इन रिलेशनशिप, एक हो सकता है मुद्दा बन सकता है सेम सेक्स मैरिज का। ठीक है, ऑल्दो सेम सेक्स रिलेशनशिप्स आर नॉट एनी मोर क्रिमिनल एक्टिविटी इन इंडिया, सेम सेक्स मैरिज इज नॉट एट ऑल लीगल इन इंडिया। तो इसके भी कुछ फेवर आर्ग्यूमेंट्स में होगा, वही सारा फेवर होगा कि 14, 15, 21 ये सब आर्टिकल आपको इक्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो अगर मैन एंड वोमेन को मिल रहा है तो वाई नॉट योर LGBTQI+। ठीक है, ऑल्सो देयर इज योर privacy and dignity factor, there is legal protection। ठीक है, these are तो फेवर में हो गया। अगेंस्ट में हो रहा है कि जो हमारे अभी जो सोसाइटी है दैट इज नॉट डिजाइंड इन अ वे कि वो एकोमोडेट कर पाए ये सब नई चीजें जो कि हम अदर कंट्रीज में देखते हैं। ठीक है, तो दीज आर सम थिंग्स। अब इसका एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए कि हम इसको कैसे डील कर सकते हैं। तो जो LGBTQIA+ ग्रुप्स के लीडर्स है, या फिर जो लीगल एक्सपर्ट्स है, या फिर जो डिफरेंट रिलीजियस लीडर्स है, उनके साथ बैठ के हम एक कुछ कुछ मतलब कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कुछ मिडिल पाथ निकाल सकते हैं, या फिर हम सिविल यूनियंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि नॉट नेसेसरीली मैरिज ही हो। पहले जैसे कि जर्मनी में ये चीज होती है पहले भी। ठीक है, कि साथ में रहना इज नॉट नेसेसरीली अ मैरिज, बट मैरिज में जो जो राइट्स मिलती है वो हम सिविल यूनियंस को भी दे सकते हैं। ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ऑल्सो जो सरोगेसी और एडॉप्शन के लॉज है उसको भी रिफॉर्म करना पड़ेगा, बिकॉज इन इंडिया यू मस्ट बी नोइंग दैट मेन आर नॉट अलाउड टू अडॉप्ट अ गर्ल चाइल्ड। तो अब लेट्स से कि दो मेल का सेम सेक्स मैरिज होता है और उनको एक गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट करना हो तो वो तो नहीं अलाउड होगा। सो दीज आर सम थिंग्स दैट हैज टू बी रिफॉर्म, हैज टू बी डन। ठीक है, so that is the thing about marriages in India। I think marriage topic में अब हम अच्छा खासा आंसर लिख सकते हैं।
and some important things that I have summarized in the topic of marriage की जो एंडोगैमी है वो अभी भी परसिस्ट करती है, ठीक है, उसका बस फॉर्म चेंज हुआ है. दिस इज सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स की जो एक हम अगर हमें कोई अच्छा कंक्लूजन देना हो या फिर इंट्रो लिखना हो तो हम ये सब लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल एंडोगैमी परसिस्ट, बस फॉर्म चेंज हो चुका है, ठीक है. दिस इज समथिंग कैन बी रिटन, क्योंकि मैट्रिमोनियल एप्स का मैंने आपको बताया, ये आप एक लाइन और इसमें लिख सकते हो कि मैट्रिमोनियल ऐप में आपको फिल्टर मिल जाता है, ठीक है. उसके बाद और एक चीज हुआ है, जो सैक्रेड जो बात था, सैक्रेड वर्सेस प्रैक्टिकलिटी, ये अब नॉट एनी मोर वर्सेस वाला चीज नहीं है, ये वर्सेस को अब साइमल्टेनियसली से बदल दिया गया है कि आपको मैरिज एज ए रिचुअल तो है, ठीक है, जैसे ट्रेडिशनली मैरिज को एक बिग फैट इंडियन वेडिंग की तरह होता था वो तो अभी भी होगा, बट अगर 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 देयर इज अनहैप्पी मैरिज, दैट शुड डेफिनेटली एंड इन डिवोर्स, ठीक है. सो ट्रेडिशन एंड प्रैग्मेटिज्म आर नो लॉन्गर ऑपोजिट्स, ठीक है, वो सेम ही कॉइन के दो साइड्स है बेसिकली, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज योर सेक्रेड एंड प्रैक्टिकल को एग्जिस्ट हम देख चुके हैं, ठीक है. इसके बाद आता है आपका वुमेन्स एजेंसी हैज ग्रोन, ठीक है, बेसिकली जो अर्बन एडुकेटेड वुमेन एक्सरसाइज रियल ऑटोनॉमी इन मैरिज डिसीजन, जो कि पहले नहीं होता था, ठीक है. ओके, लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज योर न्यू फॉर्म्स आर नॉट ऑटोमेटिकली लिबरेटिंग, ठीक है, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप्स, ठीक है, लिव इन रिलेशनशिप विदाउट लीगल प्रोटेक्शन कैन बी जस्ट एज कोर्सिव एज फॉर्मल मैरिजेस, तो लीगल प्रोटेक्शन मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. सो आई थिंक दैट इज इनफ डिस्कशन फॉर द टॉपिक ऑफ मैरिज. तो हम 5 पार्ट बना चुके हैं अभी तक. दीज आर ऑल दोज थिंग्स वी हैव स्टडीड इन इंडियन सोसाइटी सो फार. हमने कास्ट से शुरू किया था, हमने फंडामेंटल्स ऑफ सोसाइटी से शुरू किया था, फिर हम शायद मूव किए थे फैमिली में, फिर हमने अभी मैरिज देखा. आई थिंक आई एम मिसिंग टॉपिक, बट इट्स ओके, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके सारा, ठीक है. एंड एक बार ये सोसाइटी का पूरा खत्म हो जाएगा तो आई ऑल्सो मेक अ वन शॉट अबाउट इट, ठीक है. सो दैट इज इट फॉर द वीडियो. कीप स्माइलिंग.